Hello students, today we are going to start Science of Standard 10th chapter number 1. We will today study how to balance chemical reactions. So you all of you know the chemical reactions. What are chemical reactions basically? So chemical reactions are what? Some reactants are there and from that reactants we get some products. Okay? Some reactants are there. From that we get some product. So basically left side we will write always reactants, then this arrow means from this reactants we are getting some products. So on the right hand side we will write products. Means what? Suppose carbon plus oxygen. Okay, you know all of you the reaction carbon plus oxygen gives carbon dioxide. इतना आप सबको पता है? Yes? Okay. So in that, these two are reactants. And on the right hand side, this is our product. Product may be same, different, or it possesses same properties as reactants or different properties. It depends on the reactions. Okay. So today we will try to balance this reaction. Is it balanced? कैसे बैलेंसिंग चेक करेंगे? सो कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पे? 1, ऑक्सीजन 2. कार्बन 1, ऑक्सीजन 2. On the right hand side there must be 1 carbon and 2 oxygen. Let us check. Carbon कितने? 1. Oxygen कितने है? 2. Means this is a balanced reaction. Okay? Clear everyone? Okay. So now let us start. Iron plus copper sulfate gives what? क्या मिलेगा? अगर मैं आयन और कॉपर सल्फेट को मिक्स करता हूं तो मुझे उसमें से क्या मिलेगा? एनी आइडिया? सो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी. आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दिस सल्फेट विल मूव टुवर्ड्स आयन एंड फॉर्म आयन सल्फेट एंड कॉपर will decompose from this. Okay, will separate from sulfate. क्लियर एवरीवन? CuSO4 था इधर, तो आयन SO4 को अट्रैक्ट करेगा और कॉपर अकेला हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? अब बैलेंस करते हैं. बैलेंस है कि नहीं चेक करो. आयन इधर कितने हैं? 1. हियर ऑल्सो 1. कॉपर 1 1. SO4 1. SO4 1. That means it is a balanced reaction. Now we take some another example. Aluminium plus copper chloride. Aluminium plus copper chloride gives aluminium chloride plus copper. Okay? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड. तो कोई बोलेगा सर सोडियम क्लोराइड, आप सबने नाम सुना है सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट. उसका फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला NaCl. हाउ मेनी सोडियम आर देयर? 1 Cl1. तो सर यहां पे NaCl एक ही है, Na भी एक है, Cl भी एक है, तो यहां पे ऐसी नाइंसाफी क्यों कि कॉपर एक है और क्लोरीन 2? तो उसके लिए आपने 9th स्टैंडर्ड में वैलेंसी पढ़ी होगी. पढ़ी थी आपने वैलेंसी? यस. सो व्हाट इज वैलेंसी? सपोज मैं लिख रहा हूं कार्बन. कार्बन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 2,4. सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? सो द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स in any element is its valency 4. So plus 4 means or minus 4. That means carbon can either accept 4 electrons or lose 4 electrons. Okay? Same way copper.
copper has valency +2. Chlorine has valency of 1, means chlorine can accept 1 electrons because its atomic number is 17. So 2, 8, 7. So to make octet, either chlorine has to lose 7 electrons or to gain 1 electron. कौन सा सस्ता होगा? सस्ता इन द सेंस कौन सा अच्छा रहेगा उसके लिए कि 7 इलेक्ट्रॉन्स में लूज करूं या 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं? तो बोलेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स क्यों दूं, उससे अच्छा मैं एक ले लेता हूं, है ना. दैट मीन्स इट हैज वैलेंसी ऑफ -1 बिकॉज वो एक्सेप्ट करेगा तो माइनस, लूज करेगा तो प्लस. कॉपर इज अ डोनर, वो अच्छा इंसान. कॉपर इज अ डोनर, सो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो कॉपर क्लोरीन, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, क्लोरीन एक गेन करेगा. अब क्रॉस है ना. सो कॉपर 1, क्लोरीन 2. अब 1 हम कभी लिखते नहीं है, दैट मीन्स Cu1 Cl2. Now we will try to balance this equation. Okay. Okay, so how many aluminum are there on left side? First of all, we will make 2 columns, LHS, RHS. Then what we should write? Elements. First one aluminium, second copper and chlorine. Same way जो left side होंगे वही right side होंगे, अलग नहीं होंगे. Mind it. Aluminium, copper, chlorine. अब इधर पहले chlorine है फिर copper है, but we will make same sequence. Okay. Now on the left hand side, how many aluminium are there? Only 1. On right hand side 1. The aluminium balance. Copper on left side it is 1, on right side also it is 1, so ये भी बैलेंस है. क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3. आपको पता चला एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl क्यों नहीं लिखा, AlCl2 क्यों नहीं लिखा, AlCl3 लिखा? बिकॉज एल्यूमिनियम हैज वैलेंसी ऑफ +3 and chlorine -1. So aluminium, chlorine. Okay, so Al aluminium के साथ 1 जाएगा, क्लोरीन के साथ 3 जाएगा. So आपको अगर बैलेंस करना हो कोई भी इक्वेशन, so सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो इनकी वैलेंसी. हर एक एलिमेंट की वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी. फॉर दैट यू शुड रिफर पीरियोडिक टेबल. Okay, Mendeleev's periodic table. Now aluminium balanced है, chlorine balanced. What about chlorine? Aluminium and copper are balanced. What about chlorine? Here it is 2, here it is 3. So either we have to make this 2 3 or we have to make this 3 2. तो जो ज्यादा है वो कभी हम कम नहीं कर सकते, कम वाले को ज्यादा कर सकते हैं, but 2 के टेबल में 3 आता है? No. So what should we do? So we will take LCM of 2 and 3. What is LCM of 2 and 3? ये लेवल पे आपको डायरेक्ट LCM आना चाहिए. 2 3s are, if either one or both are prime numbers, then their product is the LCM. Okay, so LCM is 6. Means what? We have to make chlorine on both the side 6. How? तो ये 2 को मुझे 6 बना दो, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. तो ये क्लोरीन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं. अब एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे 2 है तो उसको आप रफ करके 6 नहीं कर सकते. कुछ भी चीज इसमें आप रफ नहीं कर सकते. दैट इज द फर्स्ट रूल. सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड मल्टीप्लाई दिस 2 बाय 3 टू मेक 6. सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब कंपाउंड है, अगर यहां पे सिंपल एलिमेंट होता तो यहां पे आगे लिख देंगे. कंपाउंड है तो भी हम यहां पे ही लिखेंगे. मींस वी विल राइट हियर 3. क्लियर एवरीवन? क्लोरीन को 6 बनाना है तो डायरेक्ट 2 को मैं 6 नहीं लिख सकता. सो फॉर दैट रीजन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस कंपाउंड विथ 3. सो क्लोरीन विल बिकम नाउ 3 2s are 6. अब क्लोरीन कितने हो गए? 6. ओके, लेट मी रब दिस. On the right hand side
3 क्लोरीन एटम्स आर देयर टू मेक 6। फिर से एक बार यहां पे मैं 6 नहीं कर सकता, सो यहां पे आगे मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे क्लोरीन 6 हो जाए। क्लियर? क्लोरीन 2 3 6। नाउ न्यू, अब देखो क्लोरीन बैलेंस हो गया, बट व्हाट अबाउट कॉपर एंड एल्यूमिनियम? वो बैलेंस बिगड़ गया। सो नाउ वी विल बैलेंस कॉपर एज वेल एज एल्यूमिनियम। हाउ? कॉपर सबसे पहले एल्यूमिनियम करते हैं। एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में पहले 1 था, अब कितना है? आगे देखो 2 लगा। अब ये 2 सिर्फ क्लोरीन को नहीं जाएगा, एल्यूमिनियम को भी जाएगा, है ना? सो राइट साइड अब 2 एल्यूमिनियम है, तो लेफ्ट साइड भी मुझे कितने करने पड़ेंगे? 2। यहां पे आगे मैं 2 लगा देता हूं। सेम वे कॉपर ऑन लेफ्ट साइड नाउ इट इज 3। सो ऑन द राइट साइड मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा, 3 से। तो यहां पे 3 नहीं लिखूंगा, कहां लिखूंगा मैं? आगे। सो योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. So the third example is chlorine plus sodium. अब आपको पता होना चाहिए जैसे ऑक्सीजन है वो हमेशा, कभी आपने ऑक्सीजन को ऐसे नहीं देखा होगा, मीन्स नॉट इन अ सिंगल फॉर्म। ऑक्सीजन हमेशा डबल में होता है, O2। सेम वे क्लोरीन कभी सिंगल नहीं होंगे, डबल। गिव सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है NaCl सिंगल होता है, सोडियम भी एक होता है, क्लोरीन भी वन। सो नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. इट इज क्वाइट इजी हियर. Chlorine here too. First of all, what we will do? LHS, RHS, chlorine, sodium, chlorine, sodium. Okay. How many chlorine atoms are there here? 2. Here 1. Sodium 1, 1. अब क्लोरीन बैलेंस नहीं है, सोडियम बैलेंस है, तो टू बैलेंस क्लोरीन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस क्लोरीन बाय 2 टू मेक 2। अब यहां पे तो 2 लिख नहीं सकता बिकॉज NaCl2 ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, सो आई विल मल्टीप्लाई हियर 2। अब देखो क्लोरीन बैलेंस हो गया, बट सोडियम का काम बिगड़ गया भैया। सोडियम के लिए क्या करेंगे? Na is 2 बट हियर 1। इजी, इसमें वैसे हमने कैसा किया था, सेम वे यहां पे 2 लगाएंगे तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. Fourth one. Some typical example we will take now. Aluminium sulfate plus barium chloride. Aluminium sulfate plus barium chloride gives aluminium chloride plus barium sulfate. Aluminium chloride plus barium sulfate. Okay, so what should we do here? Aluminium Al2 है तो SO4 कितने लेंगे हम, दैट इज इंपॉर्टेंट. SO4 और Al की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए पहले. SO4 की होती है -2 Al + 3, है ना. So what should we do? We will cross it. Al SO4 Al की 3 इसकी 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स Al2 SO4 थ्राइस. सो यहां पे ब्रैकेट करके मुझे क्या लिखना है, 3. दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे 3 नहीं लिखा था. सेम ये AlCl3 ऐसे ऊपर है वो आपको पता है. BaSO4 बेरियम की वैलेंसी 2, SO4 -2, सो बैलेंस्ड. बेरियम क्लोराइड 2, इसकी 1, सो BaCl2. नाउ वी विल ट्राई टू बैलेंस इट. कैसे बैलेंस करेंगे? फर्स्ट स्टेप आप सबको पता है, LHS RHS. ओके,
So the first step to balance it is what? I have to write left hand side elements as well as right hand side elements. Okay, so I will write that. लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन है? एक तो एल्यूमिनियम है. अब देखो सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग है, बट यहाँ पे भी SO4 है. सल्फर और ऑक्सीजन डीकम्पोज नहीं हुए. ओके, SO4 यहाँ पे है, SO4 सेम यहाँ पे. सो वी विल नॉट टेक S and O डिफरेंट. सल्फर और ऑक्सीजन अलग से नहीं लेंगे, पूरा SO4 एक ही साथ ले लेंगे, जिससे हमारा काम 50% ईजियर हो जाएगा. S अलग लोगे, O अलग लोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आंसर विल रिमेन सेम. सो Al, SO4, Ba, बेरियम एंड क्लोरीन. यहाँ पे Cl2 नहीं लिखेंगे, माइंड इट. SO4 क्यों लिखा? बिकॉज ये पूरा एक कंपाउंड है. क्लोरीन को Cl2 नहीं लिखेंगे, Cl2 1 है, ऐसा नहीं, Cl2 है ऐसा. सेम वे हियर वी विल राइट, यहां पे जो लिखा है वही राइट हैंड साइड में लिखेंगे. एल्यूमिनियम, SO4, बेरियम एंड क्लोरीन. नाउ वी विल ट्राई टू बैलेंस ऑल दिस एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं. एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? 1. पहले एक बार क्या करना है, बैलेंस डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है. पहले जितने एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन राइट साइड, वी हैव टू राइट हियर. SO4, अब SO4 कितना है टोटल? 3. हियर इट इज ओनली 1. बेरियम लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड राइट हैंड साइड कितने बेरियम है? ओनली 1. मीन्स बेरियम इज बैलेंस. हाँ चलो एक काम तो करो. क्लोरीन 2, 3. क्लोरीन भैया कभी भी बैलेंस होता नहीं है ना. आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, क्लोरीन को भी इतना नखरे है. ओके, सो एल्यूमिनियम 2 एंड हियर 1. सो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू शुड डू, एल्यूमिनियम को 2 कर देते हैं. यहाँ 1 को कट करके 2. अब इधर 2 किया तो इधर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं. कहाँ पे? यस, अंडरस्टूड एवरीवन. देन नेक्स्ट SO4, here it is 3, here it is 1. So to make 3, what we should do, इसको भी कट करके यहाँ पे 3 लिख देते हैं. ओके, यहां तक क्लियर आप सबको? नाउ बेरियम, अब यहाँ पे नए बेरियम लिख दो. 1 की जगह आप कितने हो गए? इसको 3 हो गए. क्लोरीन कितने हो गए? 3 2 6. 6 कैसे आया पता चला? फिर से एक बार 3 और आगे 2, दोनों का प्रोडक्ट करना है, एडिशन नहीं. 3 2 6. यहां पे एल्यूमिनियम बैलेंस कर दिया, SO4 भी कर दिया. बेरियम वहां पे 3 है, यहाँ पे 1 है. सो व्हाट यू शुड डू, बेरियम को यहां से 1 की जगह 3 कर. यहाँ बेरियम के आगे हम क्या लिखेंगे? 3. अब रहा क्लोरीन. अब क्लोरीन कितना है? 2 है, नहीं आगे हमने 3 लगाया ना. सो 3 2 6. नाउ चेक ऑल. 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, बेरियम 3 and chlorine. So all are balanced. Okay, easy. Now the last equation is sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम आपने सुना है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा. ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट decomposes into सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. फिर से मेरा क्वेश्चन है, Na2CO3 क्यों आया? बिकॉज CO3 एक कंपाउंड है, उसकी वैलेंसी होती है -2 और सोडियम की +1. ओके, सोडियम +1, कार्बोनेट -2. सो ये 2 सोडियम के पास आएगा, इसका 1 यहां पे जाएगा. क्लियर? ओके, प्लस वाटर, वाटर का तो आपको पता ही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट बैलेंस्ड? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? कैसे पता चलेगा? सिंपल, LHS RHS.
अब देखो CO3 पूरा एक कंपाउंड है, जैसे मैंने इसमें बोला था ना, SO4 का आप अलग से S और O4 मीन्स सल्फर और ऑक्सीजन का आप अलग से ले सकते हो, पूरा कंपाउंड एक साथ ना लेना हो तो। सेम वे CO3 इज अ कंपाउंड, उसकी वैलेंसी टुगेदर है -2, बट नाउ हियर वी विल टेक कार्बन एंड ऑक्सीजन डिफरेंट, अलग अलग लेंगे दोनों को सेपरेटली, मीन्स सोडियम हाइड्रोजन। CO3 is a compound but we will separate them, okay, same way on RHS, sodium हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई बाकी है, एक बार चेक कर लेना। ओके, नाउ सोडियम 1 here 2 हाइड्रोजन 1 2 कार्बन 1 and 1। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कि ये अच्छा सम, इक्वेशन इसकी बहुत अच्छी है। क्यों? बिकॉज कार्बन यहां पे भी है, यहां पे भी है। सो आइदर वी विल टेक 1 2 0 4, व्हाट नंबर वी विल टेक, कैसे पता चलेगा हम यहां पे क्या लेंगे? एनी गेस? ओके, हियर कार्बन इट इज 1, हियर ऑल्सो इट इज 1, सो टोटल हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 2 कार्बन्स, 1 + 1। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, 1 1 = 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, क्या करना है? एडिशन करना है। यहाँ पे कार्बन एक था और दूसरा यहाँ पे था, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 2। क्लियर? एंड लास्ट ऑक्सीजन 3, हियर इट इज 3, यस 3 है, तुरंत देख के 3 मत लिख देना, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे और 2 है, मीन्स 3 + 1 4 + 2 6, टोटल 6 ऑक्सीजन है। अब देखो डायरेक्ट मुझे एक हिंट मिली है, आपको दिख रहा है? कुछ ऑब्जर्व करो तो, कुछ ऑब्जर्व किया आपने? राइट हैंड साइड के सब नंबर्स देखो और लेफ्ट हैंड साइड के सब नंबर्स देखो। सोडियम का डबल 2, हाइड्रोजन 1 डबल 2, कार्बन 1 डबल 2, ऑक्सीजन 3 का डबल 6, मीन्स व्हाट? अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे राइट हैंड साइड मिल जाएगा। RHS में मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने, सिर्फ LHS मुझे डबल कर देना। तो LHS में हमारा इस बार नसीब भी देखो, हर एक में 2 कंपाउंड थे, इस बार एक ही कंपाउंड है। सो वी विल डायरेक्ट राइट 2 हियर। सो नाउ चेक, 1 का जगह क्या हो गया यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 and 2, 5 नहीं लिखना है, 3 2 = 6। अब देख सकते हो दोनों बैलेंस हो गए। ओके, this is all about balancing the chemical equation. From next lecture we will start another topic. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye everyone.